हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हार्डवेयर मेंटेनेंस, जिसमें हम मॉनिटर्स कवर करेंगे। ये वीडियो एग्जाम ओरिएंटेड है एंड बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने इसको समझाया है। तो आज के टॉपिक्स हैं हमारे मोनोक्रोम एंड कलर मॉनिटर्स। सो जो ये फोटोज हैं, ये मोनोक्रोम कंप्यूटर्स होते थे। चलो अब डीपली पढ़ते हैं मोनोक्रोम मॉनिटर्स को। सो जो ये इमेज गिवन है ये मोनोक्रोम मॉनिटर की है। सो एज यू कैन सी, जो इस पर टेक्स्ट है ये वाइट कलर में है। ऐसे ही यहाँ पे लिखा है मोनोक्रोम मॉनिटर डिस्प्ले टेक्स्ट और ग्राफिक्स इन वन कलर, जो कि ग्रीन या फिर वाइट कलर में ही होता था। नाउ इसके मेन ब्लॉक्स क्या है? डिस्प्ले अडेप्टर, वीडियो एम्पलीफायर, सिंक सेक्शन, सीआरटी, पावर सप्लाई। अगर आपको इनमें से कोई भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आगे वीडियो में सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। नाउ वीडियो सिग्नल क्या करता है? इट कंट्रोल्स ब्राइटनेस ऑफ पिक्सल। सिंक सेक्शन कंट्रोल्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्कैनिंग। CRT converts electrical signals into visible image. Now, what is CRT? CRT stands for cathode ray tube. Okay. Now, power supply provides required voltage and measuredly ये जो ब्लॉक डायग्राम्स वाले क्वेश्चंस होते हैं ये एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो कि 7 to 10 मार्क्स कवर करते हैं। अब मैंने आपकी हेल्प के लिए ब्लॉक डायग्राम भी बना रखा है सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दिस एंड एग्जाम में भी आप बनाकर आ सकते हो। So this is an easy block diagram for monochrome monitor, जो कि आप easily एग्जाम में भी बना के आ सकते हो and it is better for your understanding. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। Let's move further. Now pixels and resolution, अब वो क्या होता है? पिक्सेल्स जैसे कि यहाँ पर गिवन है, ये स्मॉल डॉट्स, इनको कहते हैं पिक्सेल्स। पिक्सल इज इक्वल टू स्मॉल डॉट्स ऑन द स्क्रीन. Image is formed by a combination of many pixels. Hope you understand that. Resolution क्या होता है? Resolution means total number of pixels on the screen, जैसे कि यहाँ पे शो कर रहे हैं 720 into 400। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गया। Higher resolution gives clear image. Monochrome monitors have lower resolution than color computers. Resolution depends on monitor and display adapter. Hope you get it. Now, sync section. Sync section किस लिए होता है? It keeps the monitor's display steady and in position. मैंने आपके लिए एक easy block diagram भी बना रखा है so that आप easily समझ सको इसे। Sync section controls scanning of electron beam. Horizontal sync controls left to right movement. Vertical sync controls top to bottom movement. Okay. If sync fails, अगर sync हो ही ना, तो image में roll और shake, image stable रहेगी ही नहीं. Sync signals come from display adapter. Okay. Important part for stable picture. It is very important so that picture stable रहे. Okay, it is frequently you asked in fault related questions. अब मैंने ये यहाँ पर ये भी गिवन है कि ये कहाँ पे पूछा जा सकता है. Okay, for your better understanding. Now, video amplifier and display basics. अब video amplifier हमें क्यों चाहिए? Video amplifier increases strength of video signal. Okay. Now मैंने हर स्लाइड में कोई ना कोई ब्लॉक डायग्राम जरूर दे रखा है for your better understanding. So it controls brightness and contrast. Weak amplifier cause dim display. Display basics include faster scanning. Okay. Electron beam strikes phosphor coating. Now phosphor coating क्या होता है? Phosphor coating is a thin layer of phosphor material applied inside surface of a CRT screen. CRT screen मतलब कि जो ग्लास होता है उसके अंदर वो यूज होता है. Okay, now electron beam strikes phosphor coating. Phosphor glows to produce image. Okay, it is very important. Now, brightness depend on beam intensity. Simple. Now next. Now, text mode and graphic mode. अब ये देखो मैंने यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम दे रखा है so that आप easily उसे समझ सको. Now, text mode क्या होता है? Text mode displays character only. उससे पता चल रहा है. Graphic mode displays image and shapes.
टेक्स्ट मोड यूजेस लेस मेमोरी, ग्राफिक मोड यूजेस मोर मेमोरी, बिकॉज वो शेप और इमेजेस रहता है तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा मेमोरी यूज करेगा. Monochrome monitors support both modes. Mode is selected by display adapter. ओके. नाउ ये जो टेक्स्ट मोड और ग्राफिक मोड है ये मेजरली कंपैरिजन के लिए आता है, ठीक है, एग्जाम में. नाउ डिस्प्ले अडेप्टर कार्ड्स. अब वो किस लिए चाहिए होता है? सबसे पहले ये यहाँ पे काफी सारे डिस्प्ले अडेप्टर कार्ड्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है. ओके, इसको हम आगे डीपली पढ़ेंगे. सो डिस्प्ले अडेप्टर कनेक्ट्स मॉनिटर टू कंप्यूटर. ये इसलिए चाहिए होता है फॉर दी कनेक्शन. इट जनरेट्स वीडियो एंड sync signals, control resolution and color capabilities. Different adapters support different monitors. It is very simple. Okay, hope you are getting this. ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में गिवन है इसलिए मैं इसको हिंदी में नहीं समझा रही हूँ, ठीक है. इंस्टॉल्ड ऑन मदरबोर्ड और एक्सपेंशन स्लॉट. एग्जाम्पल HGA CGA जो कि यहाँ पे इमेज गिवन है, ये वही एग्जाम्पल्स हैं. ये आपको शॉर्ट नोट में आ सकता है एग्जाम में, लाइक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आपको लाइक शॉर्ट क्वेश्चन या फिर ऐसे उसमें दे सकते हैं आपको. नाउ दीज आर डिफरेंट डिस्प्ले अडेप्टर कार्ड्स. ओके, ये डिफरेंट गिवन है जो कि हमने पहले पढ़ा था. नाउ HDA क्या होता है? हरकुलस ग्राफिक एडेप्टर, जो कि मोनोक्रोम थे एंड हाई रिजोल्यूशन. ये जनरेशन वाइज गिवन है. ओके. CGA कलर ग्राफिक्स एडेप्टर, लो रिजोल्यूशन एंड 4 कलर्स. EGA enhanced graphic adapter, better resolution and more colors. VGA video graphics array, standard resolution and colors. SVGA super VGA, higher resolution and colors. Now this is very important कि ये every generation ये improve होता चला गया डिस्प्ले क्वालिटी. एंड ये मोस्टली कंपैरिजन बेसिक क्वेश्चंस में पूछा जाता है, 1 मार्क में भी पूछ सकते हैं एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के लिए भी पूछ सकते हैं. नाउ हाउ मॉनिटर्स फेल. अब वो फेल क्यों हुए? नो डिस्प्ले ड्यू टू पावर सप्लाई फेल्चर. लाइट चली गई मतलब डिस्प्ले भी चला गया. डिम स्क्रीन ड्यू टू वीक CRT और एम्पलीफायर, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. इमेज डिस्टॉर्शन ड्यू टू सिंक प्रॉब्लम्स, मतलब कि जो इमेज है वो टोन दिखना, वेवी दिखना, रोलिंग. आर यू गेटिंग दैट? डेड पिक्सेल्स ऑन स्पॉट्स ऑन स्क्रीन. फ्लिकरिंग ड्यू टू लूज कनेक्शंस. फ्लिकरिंग मतलब बार बार ऑन होना बंद होना क्योंकि लूज कनेक्शंस हैं. एजिंग कंपोनेंट्स कॉज परफॉर्मेंस लॉस. होप यू गेट इट. इजी. नाउ ट्रबल शूटिंग एंड फॉल्ट एलिमिनेशन. अब वो क्या होता है? ट्रबल शूटिंग क्या होता है? ट्रबल शूटिंग मतलब फॉल्ट को आइडेंटिफाई करना, लाइक एंड उसका सोल्यूशन निकालना स्टेप बाय स्टेप, ठीक है. एंड फॉल्ट एलिमिनेशन क्या होता है? जो फॉल्ट आइडेंटिफाई हो चुका है उसको कंप्लीटली एलिमिनेट करना. ओके. नाउ अब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे प्रॉब्लम को ढूंढने के लिए. चेक पावर सप्लाई फर्स्ट. चेक डिस्प्ले केबल एंड कनेक्टर्स. टेस्ट विद अनदर मॉनिटर. ये स्टेप्स हैं. एडजस्ट ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट. चेक सिंक एंड वीडियो सिग्नल्स. देन रिप्लेस faulty components. Systematic approach gives full marks. ये बिल्कुल steps हैं जो कि ऐसे हमें चलना है so that हमें सबसे पहले प्रॉब्लम मिले, उसके बाद प्रॉब्लम मिलने के बाद हम उसको एलिमिनेट कर सकें. ओके. नाउ मेंटेनेंस चार्ट एंड मॉनिटर एडजस्टमेंट. अब ये क्या होता है? मेंटेनेंस चार्ट होता है कोई भी टेबल या चार्ट जिसमें मशीन या सिस्टम की रेगुलर मेंटेनेंस के स्टेप्स लिखे होते हैं. ओके. एंड मॉनिटर एडजस्टमेंट होता है लाइक एडजस्टमेंट्स करना मॉनिटर के हिसाब से जब भी जरूरत हो. ओके. नाउ दीज आर दी स्टेप्स जो हमें फॉलो करने चाहिए. क्लीन स्क्रीन प्रॉपरली. Avoid magnetic objects near monitor. Adjust brightness and contrast properly. Focus control improves sharpness. Size and position controls adjust display area. Regular maintenance increase life. Of course अगर तुम अपनी डिवाइस की रेगुलर मेंटेनेंस करोगे तो तुम्हारी डिवाइस की लाइफ बढ़ेगी ही. एंड एडजस्टमेंट के क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो तुम्हें ये अच्छे से करना है. Now, folds in monochrome monitor sections. अब ये क्या है?
अब यहाँ पर सेक्शन वाइज फॉल्ट्स गिवन है जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले है पावर सप्लाई फॉल्ट, मतलब लाइट गई तो डिस्प्ले नहीं है, नो डिस्प्ले। वीडियो एम्पलीफायर फॉल्ट, डिम और नो इमेज। सिंक सेक्शन फॉल्ट, मतलब कि इमेज स्टेबल ही नहीं होगी, रोलिंग और अनस्टेबल पिक्चर। सीआरटी फॉल्ट मतलब स्पोर्ट्स और वीक डिस्प्ले। डिफ्लेक्शन फॉल्ट मतलब इमेज साइज प्रॉब्लम। ठीक है, ईच फॉल्ट रिलेट्स टू अ सेक्शन। ठीक है, एंड सेक्शन वाइज अगर तुम इसको याद करोगे और लिख कर आओगे ना तो हाइयर मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। ओके, नाउ कलर मॉनिटर्स। अब कलर मॉनिटर्स क्या होते हैं? Color monitor displays image using RGB colors. RGB stands for red, green and blue. Okay. अब इसके main blocks क्या होते हैं? Video input, RGB, amplifiers, CRT and deflection circuit. ठीक है. 3 electron guns for red, green and blue. Shadow mask helps for color purity. Okay. It is more complex than monochrome monitors. इनमें कंपैरिजन भी आ सकता है। एंड ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसका ब्लॉक डायग्राम मैंने नेक्स्ट स्लाइड में दे रखा है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ऑफ्टन आस्क फॉर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, ये एग्जाम में लॉन्ग आंसर्स में ही पूछा जाता है, सो आपको इसमें ब्लॉक डायग्राम बनाना ही होगा। तो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कलर मॉनिटर। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत बड़ा है। आपको 2 से 3 बार तो प्रैक्टिस करना ही होगा सो दैट आप एग्जाम में इजीली इसको बना सको। ओके, यू कैन इजीली टेक द स्क्रीनशॉट सो दैट आप इसको प्रैक्टिस कर सको। Now, basic color theory. Now, a basic color theory क्या थी? Basic color theory explains how primary colors combine to produce a wide range of colors in display systems. ठीक है, अब primary colors क्या थे? वो थे red, green and blue. ठीक है, mixing RGB produces all colors. Equal RGB gives white color, no RGB gives black color. ठीक है, color intensity depends on signal strength. Okay, used in all color computers. It is very important theory. It is very simple but it is very important for exam point of view. ठीक है, so you have to learn this. मैंने जो भी इस वीडियो में बताया है वो मोस्टली important चीजें हैं। ठीक है, जो भी एग्जाम में आ सकता है। Okay, now faults in color section. अब faults क्या थे? Missing color due to RGB amplifier fault. ठीक है, कलर डिस्टोर्शन ड्यू टू शेडो मास्क प्रॉब्लम, मतलब प्योरिटी ही नहीं थी। इम्प्रॉपर कलर ड्यू टू सिग्नल इम्बैलेंस। कलर पैटर्न्स ड्यू टू मैग्नेटिज्म। वीक कलर ड्यू टू CRT एजिंग। कलर फोल्ड्स आर इजी टू आइडेंटिफाई, मतलब ऑफ कोर्स कलर फोल्ड्स पता चल जाते थे इजीली, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जब कलर मॉनिटर का क्वेश्चन आए तो यू कैन ऐड दिस फोल्ड्स आल्सो with that block diagram. Okay, now all the best for your exam and comment में कि आपको next किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। Okay, hope you understand this video.